Chapter 5 Arithmetic Progression. The important questions of this chapter. Any AP can be written in the form of A plus D, A plus 2D and A plus 3D, so on. The A is the first term, D is the common difference. The D is equal to second term minus first term या फिर A n plus one term minus a n. This is the difference, common difference. If we find the nth term of this AP, then the formula is nth term of an AP is a plus n minus 1 into d, where n is the nth term, d is the common difference, a is the first term. Now the sum of this series. The formula of sum of the series is Sn n by 2 a plus L, where L is the last term, or the formula becomes n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of sum of n terms. These two formula, ये दोनों formula ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं AP फाइंड करने में. ओके, नाउ द क्वेश्चंस. सबसे सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन. The what value of P are 2P plus 1, 13 and 5P minus 3. 3 consecutive terms of an AP. अगर ये तीन टर्म AP के 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो P की वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है. तीन टर्म दिए हुए हैं A1, A2 एंड A3. तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2. तो D remains the same, common difference. Now A2 is 13 minus 2P plus 1 and A3 is 5P minus 3 minus 13. Second term is 13. Now solve. 13 minus 2P minus plus minus 5P minus 16. Okay. Minus 2P minus 5P. देखिए, जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल को एक साइड में ले आएंगे. और माइनस 16, 13 माइनस 1 12, इट मीन्स माइनस 12. माइनस 7P इक्वल टू माइनस 28. इट मीन्स P इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 7 4 जा 28. इट मीन्स P इक्वल टू 7. 1 mark क्वेश्चन, सिंपल 1 mark क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड इजी शॉर्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP? एक AP दी हुई है 7, 11, 15 एंड सो ऑन 139. इस AP में कितने टर्म होंगे? यानी लास्ट टर्म दिया है 139 एंड A इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू 11 माइनस 7 4. ओके, वी हैव टू फाइंड n. द फर्स्ट formula of last term A plus n minus 1 into D. 139 7 plus n minus 1 into D is 4. सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 139 minus 7 equal to n minus 1 into 4. 132 divided by 4 equal to n minus 1. 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 33. इट मीन्स n इक्वल टू 33 प्लस 1 34. यानी 34th टर्म जो होगा वो 139 होगा. हाउ मेनी टर्म्स? इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? यानी लास्ट टर्म 139 है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 34. सिंपल क्वेश्चन, 1 और 2 mark क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल 1 mark क्वेश्चन. द nth टर्म ऑफ द AP. इस AP का हमको nth टर्म निकालना है. AP क्या है? A 3A 5A. इट मीन्स फर्स्ट टर्म A एंड D इक्वल टू 3A माइनस A. इट मीन्स D इज 2A. नाउ nth टर्म, द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वेयर A इज A, n माइनस 1 इंटू D इज 2A. नाउ टेकिंग A कॉमन, 1 plus n minus 2 into 2n minus 2 multiplied by 2n minus 2, A common,
इट मीन्स 2n माइनस 1, 2n माइनस 1. तो nth टर्म क्या होगा? a 2n माइनस 1. 1 मार्क क्वेश्चन. सिंपल, कोई भी सीरीज देगा, nth टर्म निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस. जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. हमको 31st टर्म निकालना है जिसका कि 11th टर्म दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म, यानी a 11 इक्वल टू 38, a 11 इक्वल टू 38 मीन्स a प्लस 10d 38. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड 16th टर्म इज 70, यानी 16th टर्म इज 73. It means a plus 15d equal to 73. This is the second equation. Okay. Now subtract these equations. A plus 15d equal to 73. A plus 10d equal to 38. Now subtract the equations. 5d d equal to 7. 5 7 ja 35. Okay. Now find a. A plus 10d equal to 38. Now put the value of d. A plus 10 into 7. A equal to 38 minus 70. It means minus 2. 10 minus 8 2, 6 minus 3, a equal to minus 32. A equal to minus 32. Now we have to find the 31st term. Okay. So the 31st term is a plus 30d. A is minus 32. D is 7. 30 into 7. Minus 32 plus 210. 210 minus 32 is 178. This is the 31. Okay. Now question number 5. Solve the equation 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus x equal to 287. यानी इन सारे टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है? 287. a इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में क्या है? a इक्वल टू 1 and d equal to 4 minus 1 equal to 3. Now sum of n terms is 287. Okay. So n by 2, 2a 2 into 1 plus n minus 1 into d is equal to 287. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n 2 plus 3n minus 3 and 2 into 287. ये हो गया 3n स्क्वायर, 2 minus 3 minus 3n स्क्वायर minus n minus 2 7 जा 14, 570. 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 5. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको हम लोग अल्फा बीटा के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा एंड बीटा बोथ एक साइड निकाल लेते हैं. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ से n निकलेगा. देखिए माइनस बी में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 1, b इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 3 एंड c इज माइनस 574. बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3. देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1 प्लस माइनस रूट 6 8 8 9 बाई 6. जब इसको मल्टीप्लाई करके लाइएगा तो आएगा 6 8 8 9. तो ये किसका स्क्वायर होता है? 1 प्लस माइनस
6 8 8 9 83 का, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 83/6। जब हम लोग प्लस लेंगे 1 + 83/6 इट मीन्स 84/6 14। ओके, और जब इसका बीटा निकालेंगे दूसरा रूट तो 1 - 83/6, यानी ये आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव तो n हो नहीं सकता, इसलिए n = 14। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? n = 14। और हमको निकालना क्या है? लास्ट टर्म, यानी हमको 14th टर्म निकालना है। हमको कौन सा टर्म निकालना है? A14। A14 क्या होता है? A + 13D, जहां पर A क्या है? 1, 13, D is 3, 1 + 39 = 40। पहले हमने क्या निकाला? इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? n फाइंड कर लिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और n निकलने के बाद ये 14th टर्म हो गया x, तो हमने 14th टर्म निकाल दिया। इट मीन्स x = 40। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² / 2 + 5n/2। फाइंड इट्स nth टर्म एंड 25th टर्म। देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला दे दिया, Sn = 3n² / 2 + 5n/2। अब हमको एक टर्म चाहिए, सम ऑफ वन टर्म क्या होगा? n = 1 पुट करेंगे तो 3/2 + 5/2, इट मीन्स 5 + 3 8/2 इज 4। तो एक टर्म का क्या होता है सम? वो फर्स्ट टर्म होता है। अब सम ऑफ टू टर्म्स निकालेंगे, तो सम ऑफ टू टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? n = 2, यहाँ पर n = 1, फर्स्ट टर्म के लिए n = 1। S2 मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स, यानी 3 × 2² / 2 + 5 × सेकेंड, n = 2 पुट कर रहे हैं, कितना हो गया? 3 × 2 = 6 + 5 11, यानी सेकंड दो टर्म का सम ये है। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? S2 - S1, यानी 11 - 4 = सेकेंड 7। तो D क्या होता है? A2 - A1, इट मीन्स 7 - 4, D is 3। अब मुझे A पता चल गया, D पता चल गया, अब क्या पूछना है हमको? फाइंड इट्स nth टर्म। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। पुट कर देंगे, A की जगह क्या रखेंगे? 4, n - 1 × D is 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 + 3n - 3, इट मीन्स 3n + 1। ये हो गया nth टर्म, 3n + 1। और हमको निकालना क्या है? 25th टर्म। अब हमको निकालना है 25th टर्म। तो A25 क्या होगा? 3n + 1 में n = 25 लगाएंगे, 3 × 25 + 1, इट मीन्स 75 + 1 is 76। 25th टर्म is 76 एंड nth टर्म is 3n + 1। पहले क्या किए? n = 1 डाले, सम ऑफ वन टर्म आ गया, n = 2 डाले, सम ऑफ टू टर्म्स, फिर A2 सेकेंड टर्म निकाले, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म माइनस करके A2 निकला, फिर D निकाले हैं A2 - A1 करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखिए हमको दिया क्या है? सम ऑफ 4th टर्म यानी A4 एंड A8 दोनों का सम 24 है, और 6th यानी A6 + A10 दोनों मिला के कितना है? 44। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन बना सकते हैं। A4 को क्या लिखेंगे? A + 3D, A8 को लिखेंगे A + 7D, n - 1 होता है इसलिए। ये क्या बन गई? 2A + 10D = 24। A कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? A + 5D = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड बनाएंगे। A6
A6 A plus 5D A plus 9D इक्वल टू 44। 10th टर्म ये हो गया, 6th टर्म ये हो गया, जोड़ेंगे तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 40। फिर इसमें से 2 कॉमन, A प्लस 7D इक्वल टू 22। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, या फिर इसको इसके नीचे लिख के माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से A एंड D निकलेगा। 2D इक्वल टू 10 तो D इक्वल टू 5। अब D इक्वल टू 5 है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। A प्लस 5D इक्वल टू 12। ओके, तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। D कितना निकला है 5। 7 माइनस 5 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 5। A इक्वल टू 12 माइनस 25, इट मीन्स माइनस 13। द फर्स्ट टर्म इज माइनस 13। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। देखिए पहला टर्म A होता है, दूसरा A प्लस D और तीसरा होता है A प्लस 2D। तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 13, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 और तीसरा हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10। 2D मीन्स 5 2 जा 10, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इसमें बच्चे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर सिर्फ 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम दिया हुआ है, ना कि सम के फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचना है। ये क्वेश्चन इजी भी है। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4n माइनस 8, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। यानी उसने क्या दिया है, A3 दिया है 4 एंड 9 दिया है माइनस 8। ओके, और हमको बताना है विच टर्म, यानी n निकालना है। an इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, nth टर्म इज 0। इक्वेशन A थर्ड टर्म है तो A प्लस 2D इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म है A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8। सब्ट्रैक्ट माइनस 6D इक्वल टू 12, D इक्वल टू माइनस 2। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D in any one equation. First equation, A plus 2D equal to 4. A plus 2 into minus 2 equal to 4. तो A equal to 4 plus 4 8। ठीक है, A और D पता है। अब हमको an देखना है कि विच टर्म इज 0। an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n निकालना है, ये 0 है, ये 8 है, ये n माइनस 1 है और D इज माइनस 2। यानी n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 8। n माइनस 1 इक्वल टू 4, इट मीन्स n इक्वल टू 5। यानी 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। कौन सा टर्म 0 होगा, 5th टर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? It means A equal to 9 and D equal to 17 minus 9 यानी 8 and sum 636। वो पूछ रहा है कि कितने टर्म का सम 636 होगा इस AP का। तो A पता है, D पता है, हमको n निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। नाउ पुट इन द इक्वेशन 636 n/2 2A यानी 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। 636 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये क्या हो जाएगा n, 18 प्लस 8n minus 8. It means 8n square. 18 minus 8 is 10 plus 10n minus
636 इंटू 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर वही a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू माइनस 636। चलिए इजी करने के लिए हम लोग सबसे पहले d निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 636, ये हो गया 25 प्लस 16 इंटू 636 इज 10,176। ऐड करेंगे तो 10,201। अब अंडर रूट डी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में हमको यही वैल्यू रखनी है 10201। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 101 आएगा। अब इसके दो रूट निकलेंगे अल्फा एंड बीटा। पहला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 101 बाई 2a यानी 2 इंटू 4। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही होगी। पहला निकालेंगे -5 माइनस 101 बाई 8 इज माइनस 106 बाई 8 माइनस 53 बाई 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा रूट निकालेंगे -5 प्लस 101 बाई 8। ओके, नाउ 96 बाई 8 40 101 minus 5 by 8 96 by 8। it means 8 1 जा 8 2 जा 16। it means n equal to 12 is the right answer because minus 53 by 4 is not possible, therefore n equal to 12। okay, last important question, question number 10। in an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15th term is 2565. Find the AP. The sum of 10 terms, it means S10 equal to 210. Now the formula n by 2, 2a plus 9d equal to 210. Okay, it means 2 5 जा 10 और 5 से कटेगा तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 210 बाई 5। इट मीन्स 42। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब कह रहा है द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। देखिए 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन सा होगा, फ्रॉम द लास्ट। इट मीन्स 50 माइनस 15 प्लस 1, ये वो नंबर का होगा, यानी 36th टर्म। ठीक है, 36वां टर्म जो है वो लास्ट से। तो जब हम सीरीज बनाएंगे सम ऑफ 15 लास्ट के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 बाई 2 2a, यानी यहाँ जब सीरीज लास्ट से चलेगी यहाँ पर पीछे तो जो 36 टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। बाकी n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हो गया 15 बाई 2 इक्वल टू कितना दिया है 2565। 2565 ये हो गया। A36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 35d। 36 टर्म ये होगा प्लस 14d। अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2565 इंटू 15 2a प्लस 70d प्लस 14d। ओके, then the next term 2 into 2565 equal to 15 2a plus 84d. Now 2 into 2565 by 15 equal to
2a plus 84d. Now cancel by 15. 15 1 ja 15. 15 7 ja 105. 15 1 ja 15. 2 7 ja 14. 342 equal to 2a plus 84d. The equation number 1 is 2a plus 9d is equal to 42, and the second equation is 2a plus 84d equal to 342. This is the second equation and this one the first. Subtract, minus करेंगे, minus 75d, 0 0 300 minus, then d equal to 4. Okay, now put in the equation number 1 d equal to 4. 9 into 4 equal to 42. 2a equal to 42 minus 9 4 ja 36. 6. A equal to 6 by 2 equal to 3. Okay, हमको निकालना है in an AP 50th term the sum of the 10th term is 210 and the sum of its 15th term is find the AP. अब हमको AP निकालनी है. तो AP क्या होती है? A plus D, A plus 2D and so on. ठीक है, तो A हो गया 3 and 3 plus D यानी 3 plus 4, 3 plus 2 into 4 and so on. Series is 3 7 2 4 जा 8 और 3 11 and so on. This is the AP. ये 4 marks क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा है.